The God of Small Things is a story about a family in Kerala, a state in southern India. It's a place with beautiful nature, like rivers and forests, but also has strict social rules. The author, Arundhati Roy, grew up there, so she writes about it with a lot of detail. The main characters are twins, Rahel and Estha. They're very close. The story jumps between their childhood in 1969 and their adult lives in 1993. This shows how things that happen when you're young can affect you forever. In 1969, their English cousin, Sophie Mole, comes to visit. This visit changes everything. The family is complicated. There's their mother, Emu, their grandmother, Mama Chi, who runs a pickle business, their uncle, Chaco, and their great-aunt, Baby Kochama. They all have their own problems. That a terrible thing happens. Sophie Mole drowns. This event hurts everyone in the family deeply. The story also introduces Velutha, a carpenter. He's from a low caste, which means he's treated badly by society. Despite this, he's a good person. Amu and Velutha fall in love, but this is forbidden because of the caste system. In those times, people from different castes weren't allowed to have relationships. After Sophie Mole's death, Velutha is blamed. This is because he's from a low caste, and because of his relationship with Amu. Baby Kochama, who is prejudiced, plays a big part in blaming him. Velutha is beaten by the police and dies. This tragedy breaks the family apart. Amu is rejected by her family and dies young. Rahel and Estha are separated for many years. In 1993, Rahel and Estha meet again. They're both adults, but they're still affected by what happened in their childhood. Their bond is still strong. Central theme: the impact of societal rules, family dynamics, and the consequences of seemingly insignificant events. Literary style: powerful storytelling that explores the lasting effects of the past and societal injustices. Themes explored: love, loss, and the impact of prejudice. छोटी चीजों का देवता की कहानी भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक खूबसूरत राज्य केरल में घटित होती है। लेखिका, जिसने अपना बचपन वहां बिताया, उस जगह को जीवंत कर देती है, जिससे यह कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। केरल की नदियों, जंगलों और भारी बारिश का विस्तृत वर्णन पाठक को वातावरण को महसूस करने में मदद करता है। ये प्राकृतिक परिवेश पात्रों की परेशान भावनाओं के विपरीत हैं। केरल के रीति रिवाज और परंपराएं पात्रों के जीवन और उनके सामने आने वाले संघर्षों को आकार देती हैं। कहानी के मुख्य पात्र जुड़वां हैं, राहेल और एस्था इपे। वे एक साथ पैदा हुए हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व अलग अलग हैं। उनका गहरा बंधन पुस्तक में एक प्रमुख विषय है, जो संबंध और नियति को दर्शाता है। पुस्तक एक सीधी समय रेखा का अनुसरण नहीं करती है। यह 1969 के बीच चलती है, जब जुड़वां बचे हैं, और 1993, जब वे वयस्क हैं। यह शैली दिखाती है कि कैसे पिछली घटनाएं उनके वर्तमान जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं। एक बड़ी घटना जिसने जुड़वा बच्चों के लिए सब कुछ बदल दिया, वह है 1969 में उनकी चचेरी बहन सोफी मोल का आना। उसके आने से परिवार में कई दुखद घटनाएं होती हैं। परिवार जटिल है, जिसमें उनकी मां अमू, उनकी दादी ममाची, उनके शिक्षित चाचा चाको और उनकी सख्त पर दादी बेबी कोचमा है। उनके बीच प्यार और तनाव दोनों हैं। सबसे बड़ी त्रासदी तब होती है जब सोफी मोल डूब जाती है। यह दुर्घटना परिवार के हर सदस्य को गहराई से प्रभावित करती है। एक अन्य प्रमुख पात्र वेलुथा है, जो परवन जाति का एक कुशल बढ़ई है, जिसे उस समय भारतीय समाज में अछूत माना जाता था। अपनी निम्न स्थिति के बावजूद वेलुथा दयालु और प्रतिभाशाली है, और जुड़वां बच्चे उसकी प्रशंसा करते हैं। कहानी अमू और वेलुथा के बीच गुप्त प्रेम को दर्शाती है। यह रिश्ता सख्त जाति नियमों को तोड़ता है, जिसे प्रेम कानून के रूप में जाना जाता है। 1960 के दशक के केरल में ऐसा प्यार न केवल वर्जित था, बल्कि खतरनाक भी था। उसी समय केरल में साम्यवाद बढ़ रहा था, जो पुरानी वर्ग प्रणालियों को चुनौती दे रहा था। वेलुथा इस आंदोलन में शामिल था, जिसने कहानी में एक और परत जोड़ दी। सोफी मोल की मौत के बाद वेलुथा को उसकी जाति और अम्मू के प्रति उसके प्यार के कारण गलत तरीके से दोषी ठहराया जाता है।
यह समाज की अन्यायपूर्णता को दर्शाता है। जुड़वा बच्चों की परदादी बेबी को चम्मा वेलुथा को फंसाने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। वह परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा करना चाहती है। वेलुथा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पुलिस द्वारा बुरी तरह पीटा जाता है और अपनी चोटों से मर जाता है। यह त्रासदी जुड़वा बच्चों को 23 साल के लिए अलग कर देती है। उनकी मां अम्मू को परिवार द्वारा त्याग दिया जाता है और वह 31 साल की उम्र में अकेले मर जाती है। ये घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे क्रूर सामाजिक नियम जीवन को नष्ट कर सकते हैं। 1993 में राहेल और एस्था अपने गृह नगर आइमेनम में फिर से मिलते हैं, लेकिन उनके बचपन का सदमा अभी भी उन्हें सताता है। किताब दिखाती है कि कैसे अतीत की यादें उनके वर्तमान को आकार देती हैं। सालों अलग रहने के बाद भी जुड़वा के रूप में उनका बंधन मजबूत बना हुआ है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उन महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालता है जो सभी को प्रभावित करते हैं। यह दिखाता है कि कैसे सख्त सामाजिक नियम, विशेष रूप से प्रेम और जाति के बारे में, लोगों के जीवन को नियंत्रित करते हैं। किताब में जटिल पारिवारिक रिश्तों, प्यार, रहस्यों और संघर्षों का भी वर्णन किया गया है। शीर्षक से ही पता चलता है कि छोटी छोटी घटनाओं और विकल्पों का भी लोगों के जीवन पर बड़ा और स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। अंत में अरुंधति रॉय का उपन्यास एक शक्तिशाली और भावनात्मक कहानी है। इसने बुकर पुरस्कार जीता और दुनिया भर में इसे पसंद किया गया। इसकी ताकत इसकी गहरी कहानी कहने की शैली, केरल के विस्तृत चित्रण और प्यार, नुकसान, भेदभाव और अतीत कैसे भविष्य को आकार देता है, इसकी चर्चा में निहित है। राहेल और एस्था की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि कैसे समाज के नियम और व्यक्तिगत विकल्प, चाहे बड़े हों या छोटे, हमेशा के लिए जीवन बदल सकते हैं।